Hi everyone. A very good evening to each and every people present over here. I just welcome you all guys for this particular session. A very warm welcome to this particular session of yours own Rakhi ma'am, the chemistry educator over here. And today in Concept Booster series, what I'm actually going to talk about is balancing of redox reaction, which many of you might be confused कि भाई कैसे बैलेंस किया जाए बिकॉज क्वेश्चन नीट में तो आ ही जाता है. ठीक है. आई नॉट से कि स्ट्रेट अवे पूछा जाएगा कैसे बैलेंस करना है, नहीं. जब आप बैलेंसिंग सीख जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसी के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी. सो थॉट व्हाई नॉट टू कम अप विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो कुछ ना कुछ बच्चे कोई ना कोई बच्चे छोड़ के ही चले जाते हैं. सो बेटर नॉट टू लीव दिस इजी टॉपिक, रादर टू गो फॉर इट एंड अटेम्प्ट इन अ गुड मैनर. Yes, okay. Hi Rohit. Hello Mr. King Kohli. Welcome to this session. I hope everything is fine at your end and all of you are in the best of your spirits and in the good health. Well, let's move ahead and let's talk about the high definition crystal clear session for balancing of redox reaction. Okay people, I hope by now जितने भी concept booster चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, whether it be SN1, SN2, whether it be E1, E2, whether it be, tell me guys. Yes, so we actually talked about many a things. अभी तक concept booster series के अंदर हमने काफी कुछ पढ़ा है, isn't it? I think you people agree with me. We talked about thermodynamics first law. Yes, हमने उसको अच्छे से पढ़ा. ठीक है, मैं मानती हूँ पूरा डेप्थ में नहीं गए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में आप लोगों को चाहिए वी एक्चुअली वेंट थ्रू इट. ठीक है. सो लेट्स बिगिन दिस पर्टिकुलर सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले एंड आई होप दैट you all are actually ready. So just fasten up your seat belts and come along with me on this particular journey जहाँ पर I'll be talking about the balancing of redox reaction. So my dear ones, आज का जो हमारा topic है it's balancing of redox reaction. Absolutely right ma'am. What we are going to cover today, so we'll be actually talking about the balancing of redox reaction, we'll be talking about the oxidation number method, and we'll be talking about the steps involved in the oxidation number method. I think you people, you guys are along with me. Yes ma'am, we are with you, and just let's move ahead with this particular journey. Hi Sumiti, how are you? I hope everything is fine at your end, isn't it? Yeah. So shall we move ahead? Hanji Rakhi ma'am, we are waiting for that only. Okay people, एनी डाउट? नो डाउट. अरे मैम डाउट तो तब आएगा ना जब आप पढ़ाना चालू करोगे. तो हेयर वी आर विद द very first particular thing, balancing of redox reaction we are going to talk about basically, and the methods which I'm going to discuss over here is oxidation number method. मैं basically oxidation number method को ही actual में यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो तरह से बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी. Herein it's the acidic medium and the basic medium. ठीक है. Obviously balancing is carried out in either of these two particular media, acidic media or फिर you can say the basic media. That's absolutely fine. Yeah ma'am. Moving ahead, balancing redox reaction. सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से हम redox reaction को balance out करें in acidic media. ठीक है. कुछ और जानने से पहले, कुछ और समझने से पहले राखी मैम की बातें आप समझ लो, क्योंकि जो आगे लिखा हुआ होगा उसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगी उसको मेरे साथ साथ करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी. एंड आई होप दैट एवरीवन वांट्स कि राखी मैम थोड़ी सी हेल्प तो बनती है, इजंट इट? यस यस यस. तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर. हाँ भाई बिल्कुल. तो अगर सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले रही हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग अ रिएक्शन एंड दैट इज KMnO4. इट इज KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4. ठीक है. प्लस इट इज H2SO4. ओके, द एसिडिक मीडियम गिविंग अस, हमें क्या देगा यहाँ पर ये, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्मिंग अप K2SO4. ठीक है राखी मैम. प्लस MnSO4, MnSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये रिलीज होगा. ठीक है. हाय, हेलो बैकअप, हाय दंगल किड्स. ओके पीपल. ओ यू थॉट दैट देयर इज नो क्लास टुडे? नो बच्चा, क्लास तो रोज होगी, जब नहीं होगी तो पता चल जाएगा, बट आज तो क्लास थी. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ओवर हियर विद मी गाइस. चलें आगे बढ़ें. हाँ जी. तो ये हमने रिएक्शन लिखी है. नाउ मैं बात कर रही हूँ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम के बारे में. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, ये पर्टिकुलर आपको एक पर्टिकुलर
क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है, एंड वी नीड टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, चलो काम चालू करते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विल बी, यू नीड टू राइट द हाफ सेल रिएक्शन फर्स्ट. राइट, सुन लो बहुत ध्यान से. राइट द हाफ सेल रिएक्शन. राइट द हाफ सेल रिएक्शन. सबसे पहले आप हाफ सेल रिएक्शन लिखिए. ठीक है, अब भाई मैम कैसे लिखें हाफ सेल रिएक्शन? तो सुनो, मैं हूं ना यहाँ पर. मैं यहाँ पर आपको यही तो बताने आई हूँ कि कैसे आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है. ठीक है, यही तो मेरा काम है, आप लोगों की मुश्किलें आसान करना. ओके, विल यू इनिशिएट 5 AM सेशन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी 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 नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको मिलने वाली है फ्रॉम 4th of December. प्लीज सेव द डेट. ओके, 4th December से 4th of December, that is Monday, coming Monday I'm talking about, I'm going to start the 5 AM club. ठीक है, कमिंग मंडे से मैं 5 AM क्लब स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है पीपल, सो यू नीड टू ज्वाइन मी फ्रॉम 4th of December till your exam time. I'll make sure कि मैं रोज ये क्लास लूँ, जब नहीं होगी तो I'll let you know. लेकिन 4th of December से मैं ये क्लास ले रही हूँ. 5 AM क्लब 4th of December से स्टार्ट होगा. ठीक है, ठीक है, ओके. अभी इसको रब कर देते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, अभी से रब कर देते हैं, बाद में ही बता दूंगी आपको. सो ऑन योर डिमांड आई एम कमिंग अप विद द 5 AM क्लब फ्रॉम द 4th of December. ठीक है, अब और ज्यादा वेट नहीं कराते हैं. अब आपकी आदत सुबह उठने की जरूर से जरूर राखी मैम डलवा के ही मानेंगी. ठीक है, ओके पीपल, गाइस दैट्स एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू. हाँ जी मैम, हमारे लिए तो सब कुछ फाइन ही है. तो चलो भाई, लेट्स राइट द हाफ सेल रिएक्शन फर्स्ट. तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बारे में. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो मुझे यहाँ लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बारे में जो यहाँ मैं चर्चा करने वाली हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ आप यहाँ पर देख सकते हैं. इट इज H2C2O4. हमें यहाँ क्या देगा, CO2. आप मैम ये कैसे कह सकती हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? टेल मी. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमारा कार्बन है किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन विच पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट दिस कार्बन इज, कैलकुलेट कर लेते हैं. ऐसे है ना. सो इट्स 2 + twice of x माइनस ऑफ 8 कर देते हैं. 2 4 ज़ा 8, ये तो निकालना आता ही है, वेरी इजी. सो इट्स बेसिकली twice of x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सो x विल बी इक्वल्स टू +3. तो भाई यहाँ पर ये कार्बन हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर इट विल बी इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना. बोलो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल मैम, बात तो हमें हो गई है क्लियर. ठीक है, डन 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 डन, बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो हमने सबसे पहले लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इट विल बी रिडक्शन हाफ रिएक्शन. इट विल बी रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. हाँ जी, बहुत ध्यान से जानिएगा इसको. तो यहाँ पर क्या है, इट इज KMnO4 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड KMnO4 इज एक्चुअली giving or it's getting transformed into MnSO4. Yes people, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Can you tell me? It's +1 -8, so it's -7, then Mn +7 हो गया यहाँ पर. तो यहाँ मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, एंड MnSO4 के अंदर मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सल्फेट क्या है? SO4 2 नेगेटिव है, सो Mn +2 स्टेट के अंदर है. तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है. ये वाली बात क्लियर होगी. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू पीपल. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन दी हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अब अगर मैं बात करती हूँ रूल्स फॉर बैलेंसिंग दी हाफ सेल रिएक्शन, वो भी हम किस में बात कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में बात कर रहे हैं. ठीक है, हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर. वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन एसिडिक मीडियम. ठीक है पीपल, यस और नो? हाँ जी. सो एसिडिक मीडियम के अंदर मैं बात कर रही हूँ. सो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा रूल्स. व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट? रूल्स फॉर बैलेंसिंग. रूल्स फॉर rules for balancing the half cell reaction. Half
cell reaction. जो पहली चीज थी वो क्या थी? We actually needed to write the half cell reaction, oxidation half and reduction half reaction. वो हम लोगों ने लिख ली है. अब आगे के रूल्स के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहूंगी. आगे के रूल्स के बारे में क्या कहेंगी राखी मैम, वो आप सुन लीजिए, बहुत आराम से सुनिएगा. Now if I'm talking about in acidic medium, I'm actually literally talking about in acidic medium. basic medium के बारे में बताऊंगी. in acidic medium में बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है. ओके मैम, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? बैलेंस द मेन एटम फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट? बैलेंस द main atom. Balance the main atom first. Balance the main atom first. Balance the main atom first. Except what? बताती हूँ, सुनो ध्यान से. Except hydrogen and oxygen. Except hydrogen and oxygen. Except hydrogen and oxygen. Except these two. ठीक है. ओके, दैट्स एब्सोल्युटली कूल गाइज. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. तो जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो हमारा था, पता ही होगा, इट वाज बेसिकली H2C2O4 that was giving us कार्बन डाइऑक्साइड. हमें क्या करना है? मेन एटम को सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस आउट करना है. एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इट्स कार्बन. सो कैन आई राइट इट ओवर हियर? ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल मैम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो यहाँ पर इट वाज KMnO4 ना. यहाँ पर क्या था बच्चा पार्टी बताइए? यहाँ पर व्हाट वी वर एक्चुअली हैविंग विद अस, इट वाज KMnO4 basically that was giving us MnSO4. बोलो, यही था कि नहीं था? यही था कि नहीं था? just let me know. just let me know बच्चा पार्टी. बोलो 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 भाई बोलो. yes people guys tell me. हाँ जी, I hope everything is being clear to you or not. just let me know कि हाँ भाई मैम क्लियर हैं बातें तो हमको. so क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? Is it KMnO4 giving us MnSO4? तो आप कहेंगे मैम ये SO4 कहाँ से आ गया? अरे तो भाई यहाँ पर लगा दो ना आप. इट इज SO4 2 नेगेटिव प्लस, यहाँ पर इसको बहुत तरीके से लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि राखी मैम ये क्या लिख रही हैं. आप खुद ब खुद देखिए ना रिएक्शन के अंदर. इट विल बी SO4 2 नेगेटिव प्लस KMnO4 गिविंग अस MnSO4 प्लस K पॉजिटिव. यही तो है. KMnO4 से MnSO4 बन रहा है, लेकिन हमें बैलेंस आउट भी करना है. सो SO4 2 नेगेटिव तो हमारा रिएक्टेंट साइड में है एंड इट विल बी K पॉजिटिव ऑन द अदर साइड. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग. अब सेकंड स्टेप क्या होगा? बैलेंस द ऑक्सीजन. सेकंड स्टेप क्या? देखो अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे ना, शट 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 शू शटाक तरीके से करेंगे, टाइम नहीं लगेगा इतना आप लोगों को. नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन. Balance the oxygen by adding water. Balance the oxygen by adding H2O molecule. By adding H2O molecule. ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी मैम. सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो हमारा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज H2C2O4 giving us twice of CO2. अब आप यस ट्वाइस ऑफ CO2, सॉरी ट्वाइस ऑफ CO2 होगा. वी नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन. यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड अप है. लेट्स सी इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन कि भाई वहां पर है भी कि नहीं है. सो इट इज SO4 2 नेगेटिव प्लस KMnO4 प्लस KMnO4 गिविंग अस MnSO4 giving us MnSO4 plus K positive. So we need to actually add H2O molecule in order to balance the oxygen. तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है बताइए? 4 plus 4. यहाँ 8 ऑक्सीजन है. यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है. So we'll be actually adding 4 H2O molecule on the right hand side. On the right hand side. ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया कंप्लीट. वी आर डन विद द सेकेंड स्टेप और नॉट? ये वाली चीज प्लीज आप लिख लीजिएगा. ठीक है, ये वाली चीज आप लिख लीजिएगा.
Okay, people, because now it's the time we are going to balance the hydrogen by the addition of H positive ion to the H positive deficient site. ठीक है, तो मैं दोबारा से, आप यहाँ पर देखिए, if I just now talk about the third step, ठीक है, वो दो स्टेप आपने लिखिए. थर्ड इज balance what? Balance the hydrogen. Balance the hydrogen by H positive ion. Balance the hydrogen by H positive ion. तो आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन वाला जो हमारा रिएक्शन था, वहां पर देखिए it is H2C2O4 giving us twice of carbon dioxide plus twice of H positive. कैसे? Because we need to balance the hydrogen by adding hydrogen ion in the hydrogen deficient site. तो यहाँ पर 2H positive add करना is fine. Talking about the reduction thing now. यहाँ देखो what we are having, it is SO4 2 negative plus KMnO4 we were actually having with us, yes, giving us MnSO4, ठीक है, प्लस के पॉजिटिव मिला था और प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O मिला. यहाँ पर वी आर हैविंग 8 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, सो वील बी एक्चुअली एडिंग 8 H पॉजिटिव आयंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी राखी मैम, दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर टू अस. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, बिकॉज नाउ आई स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू दी I'll move on to the fourth step now. Fourth step क्या है? We need to balance the charge now. Balance the charge. We need to balance the charge by adding electrons. By adding electrons. Now you need to balance the charge by adding electrons basically. So अब आप oxidation वाला process देखिए, ठीक है? Okay, so it is basically H2C2O4 giving us twice of carbon dioxide plus twice of H positive ion. Right hand side पे हमारे पास +2 charge है, so we'll be adding 2 electrons over here in order to nullify it, in order to nullify the +2 charge. तो हमने यहाँ पर क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है in order to balance the charge. Talking about the reduction process now. Reduction process में क्या कहें? We are actually having with us 8H positive प्लस सल्फेट आयन. देखो अगेन एंड अगेन मेरे को वही दोबारा से सारी इक्वेशंस लिखनी पड़ रही है ताकि मैं आपको सारे स्टेप्स क्लियर कर दूं, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे, व्हेन यू आर हैबिचुअल टू इट, तो आपको इतने सारे स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब आप यहाँ पर चार्ज बैलेंसिंग देखिए. यहाँ पर वी आर हैविंग +1 चार्ज, लेकिन इस साइड पे हमारे पास क्या है? इट्स +8 -2. +8 -2 इज +8 -2 कितना हो गया? +6 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड +6 है, राइट हैंड साइड +1 है, तो क्या मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं इन ऑर्डर टू जस्ट बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स? कर दिया ये तो मैंने. दिस इज व्हाट आई हैव एक्चुअली डन बच्चा बाटी, ये तो मैं कर चुकी हूँ. yes or no? अब आपको क्या करना है? यू नीड टू ऐड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, लेकिन एडिशन से पहले आपको क्या करना है? यू नीड टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली. सो बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द हाफ सेल. तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो. यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. ठीक है, एंड देन ऐड दीज 2 पर्टिकुलर इक्वेशंस. इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए. Now you have to add oxidation half reaction and reduction half reaction. क्या मिलेगा आपको? What you people are going to get? मैं straight away यहाँ लिख दूं? Shall I write it over here? बच्चा पार्टी बोलो. Tell me guys. So what we are going to get? मैंने ये मल्टीप्लाई भी कर दिया 5 से एंड 2 से, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट सीधे आंसर लिख रही हूँ. आफ्टर एडिशन इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ H2C2O4 प्लस 6 times of H positive ion, ठीक है, plus twice of sulfate ion, okay, plus twice of KMnO4, twice of KMnO4, that is going to give us 10 times of carbon dioxide plus twice of MnSO4. लो मैं आपकी यहाँ से हट जाती हूँ. ट्वाइस ऑफ MnSO4 आ गया, यस, प्लस ट्वाइस ऑफ K पॉजिटिव आ गया, यस, प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O आ गया है यहाँ पर. ठीक है, अब देखो ये हमारा एक पर्टिकुलर मेन रिएक्शन है, लेकिन
आपको याद होगा स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक इक्वेशन दिखाया था, ठीक है ना, दिखाया था ना. सो वी आर नाउ गोइंग टू ऐड सल्फेट टू बोथ द साइड्स इन ऑर्डर टू गेट द मेन रिएक्शन. हम सल्फेट को दोनों साइड, ये एक तरह की बैलेंस्ड इक्वेशन है, दैट इज ट्रू, ये एक तरह की बैलेंस्ड इक्वेशन है. लेकिन बच्चा पार्टी, वील बी एक्चुअली एडिंग द सल्फेट्स ऑन बोथ द साइड्स. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड सल्फेट आयन, ठीक है, टू बोथ द साइड्स, टू बोथ द साइड्स, ताकि हमें हमारी मेन इक्वेशन मिल जाए, ताकि हमें हमारी मेन इक्वेशन मिल जाए. जैसे ही आप सल्फेट को ऐड करेंगे ना दोनों ही साइड्स, तो आपको आपकी मेन इक्वेशन यहां पर मिल जाएगी. यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स क्लियर और नॉट? यस और नो? बिकॉज देखो, अगर मैं सल्फेट ऐड कर रही हूँ इधर भी और इधर भी, दोनों ही साइड्स, अगर मैं यहाँ पर सल्फेट ऐड किया मैंने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैं अगर सल्फेट ऐड कर रही हूँ, सो बच्चा पार्टी देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है. आर यू पीपल गेटिंग द थिंग्स क्लियर? K पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन K2SO4 मिलेगा, और यहाँ पर ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड इट्स 6H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ H2SO4 मिल जाएगा. उसी चीज के लिए हमने यहाँ पर ये चीज की है. आई होप दैट इज मेकिंग द थिंग्स क्लियर टू यू गाइज. तो हमारा जो मेन इक्वेशन है, दैट मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द बैलेंस्ड रिडॉक्स. इफ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए. इट विल बी 5 टाइम्स ऑफ H2C2O4, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ KMnO4. They are actually giving us twice of MnSO4 plus K2SO4, ठीक है, प्लस 10 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O. तो ये हमारी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर, वो भी एसिडिक मीडियम के अंदर. होप दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू पीपल. ये वाली बात क्लियर हो गई है कि नहीं क्लियर हुई है? टेल मी if this is absolutely being clear to you or not. हाँ जी बच्चा पार्टी, बताओ, फटाफट से बता दो, क्या आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सारी बातें मुझे बता दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं और समझ रहे हैं. बोलिए बच्चा पार्टी. अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे राखी मैम, आप हमें अब ये बता दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ, लगे हाथों ये भी कंप्लीट कर देती हूँ, बैलेंसिंग ऑफ, और भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे. बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल, बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम. अब कैसे करेंगे, फटाफट से करेंगे ये काम. हमने इतने सारे स्टेप एसिडिक मीडियम में पढ़ लिए, अब फटाफट से वील बी टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम. कैसे, देखो, जैसे एग्जांपल ले रही हूँ S2O3 2 नेगेटिव गिविंग अस SO4 2 नेगेटिव, इसको बैलेंस करना है. सो हम कैसे बेसिक मीडियम में बैलेंस करें, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले इक्वेशन को दो भागों में बांटना है, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है. तो जो प्रोसेस हमने एसिडिक मीडियम के लिए फॉलो किया था, वो प्रोसेस आप एसिडिक मीडियम के, वो प्रोसेस आप बेसिक मीडियम के लिए भी फॉलो करो, ठीक है. कुछ बहुत इनिशियल स्टेप्स जो हैं वो एज इट इज एसिडिक मीडियम के ही हैं. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम ना, तो पहले आप एसिडिक मीडियम में जितने भी स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं, ठीक है, टिल द बैलेंसिंग ऑफ द चार्जेस, वो कर लो. उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे फॉर बेसिक मीडियम. सो बैलेंस द गिवन, ये हमारी एक तरह से हाफ सेल रिएक्शन है, ये हमें हाफ सेल रिएक्शन ही गिवन है, बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ठीक है. सो बैलेंस द गिवन हाफ सेल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम. सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम, बैलेंसिंग, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम करेंगे, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम होगा. बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम हम सबसे पहले ये फॉलो करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, आप यहाँ देखो S2O3 2 नेगेटिव गिविंग अस SO4 2 नेगेटिव. तो सेंट्रल एटम को आप बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव. उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो by the addition of H2O basically. तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर we are having 3 oxygens, यहाँ पर we are having 8 oxygens, isn't it? So will I not add over here 5 water molecule? हाँ जी, I'll be adding over here 5 water molecule and see
yes, now we are going to balance the H positive ions, ठीक है, by adding H positive ions on the hydrogen deficient side. That's absolutely been clear. तो आप यहाँ पर देखिए, it's 5 2s are 10. तो यहाँ पर on the right hand side we'll be actually adding 10 H positive ions. So S2O3 2 negative plus 5 times of H2O giving us twice of SO4 2 negative plus 10H positive. अब क्या करेंगे? We'll be balancing the charges by the addition of electrons. We'll be balancing the charges by addition of electrons. यहाँ पर कितना चार्ज है? +10 चार्ज है और -4 +10 चार्ज है. मैं ये चार्जेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है. और यहाँ पर वी आर हैविंग -2 चार्ज. सो -4 + 10 इज इक्वल्स टू +6 चार्ज हुआ, ठीक है. और वहां -2 हो गया. सो वहां -2 है, तो क्या मैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडिशन कर सकती हूँ? अब यहाँ पर देखो, +6 -8 इज इक्वल्स टू -2 ना. ओके, यस और नो? +6 एंड इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है, सो -8 हो गया. तो इट विल बी -2. तो चार्ज बैलेंस आउट हो गया हमारा यहाँ पर. टेल मी गाइज, यहाँ चार्ज बैलेंस हो गया? से यस मैम. हेलो निर्भय, यहाँ पर चार्ज बैलेंस हमारा हो गया? यस मैम, चार्ज हमारे यहाँ पर बैलेंस आउट हो चुके हैं. ओके पीपल, देन इट्स ग्रेट इफ यू आर एक्चुअली लर्निंग. ठीक है गाइज, ओके फाइन. अब हमारा बेसिक मीडियम का कार्यक्रम स्टार्ट होगा. सो फॉर बेसिक मीडियम आपको करना क्या है? यहां तक चार्ज बैलेंसिंग तक समझ में आ गया? वही करना है जो एसिडिक मीडियम में किया था. लिख लो इसको. एड हाइड्रोक्साइड आयन, add hydroxide ion, add equal number of hydroxide ion. Okay, add OH negative ion, add अरे यार, यहां मैं कुछ, एक मिनट रुको. यहां जो मैं लिखना चाह रही हूं वो आप सुनिए. add hydroxide ion equal to number of H positive ions on both sides, ठीक है. and combine what? H positive and OH negative to form water. याद रखना इस बात को, to form water. ठीक है, कैसे राखी मैम? तो चलो बता देती हूँ आपको. वेयर वर वी? हम यहाँ तक पहुंच गए थे. S2O3 2 negative plus we were having with us basically 5 times of H2O हमारे पास था, and we were also having twice of SO4 2 negative plus 10 times of H positive ion plus 8 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ हमने कर लिया था. अब हमें हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करने हैं, ठीक है. we need to add OH negative ions. We need to add OH negative ions equal to the number of H positive ions on both the sides. यहाँ पर 10 H positive ions हैं, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए 10 OH negative ions लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड 10 OH negative ions राइट हैंड साइड में भी. अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं ना. 10 H2O मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? सो व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू गेट 10 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये बेसिक मीडियम हो गया, प्लस S2O3 2 नेगेटिव गिविंग अस, देखो यहाँ 5 H2O है, यहाँ पर 10 H2O है, सो वो हम माइनस कर सकते हैं ना. हाँ जी. सो इट्स ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लीजिए, ये आपका बन गया है क्या? टेल मी गाइज, ये क्या हो गया है? ये आपकी इक्वेशन बैलेंस आउट हो गई है. किस में बैलेंस आउट हो गई है इक्वेशन आपकी? द इक्वेशन हैव बीन बैलेंस्ड आउट. किस में? बताओ. इक्वेशन कहाँ बैलेंस्ड आउट होगी है? बेसिक मीडियम में, ठीक है. इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन. इट्स व्हाट? बैलेंस्ड रिडॉक्स, और यू कैन से बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन. यू कैन से बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन. बैलेंस्ड हाफ cell reaction in
बेसिक मीडियम। ठीक है, मैंने दोनों ही प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए हैं। होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर यू पीपल। बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट। ओके ओके। हाँ जी बच्चे पार्टी, एक मिनट, गिव मी योर टाइम 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 दीजिए। अरे भाई, मेरी प्रेजेंटेशन, वेट अ मिनट। ओके, आई गॉट माई प्रेजेंटेशन। आई थॉट वेयर इज माई प्रेजेंटेशन गॉन। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है? एवरीथिंग इज नाउ कूल। ओके गाइस, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अभी इट्स फाइन आई बिलीव ना। या तो चलिए फिर, अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन तो ओके, नाउ आई एम एक्चुअली ऑन टू माई थिंग। चलो, फाइन 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 फाइन। I'm good, Medico Warrior. What about you? I hope everything is fine at your end. Congratulations, Vandana. चलो बच्चा पार्टी। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी चीजें मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर बताई, दीज वर द थिंग्स यू नीड टू एक्चुअली फॉलो। ठीक है, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, नाउ ओके, ठीक है चलो। सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अभी जो मैंने आपको बताया एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वो क्लियर हो गया। एक एग्जांपल के साथ मैं आई हूँ। अब आप एग्जांपल देखिए, FeSO4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 गिविंग अस Fe2SO4 थ्राइस MnSO4 प्लस H2O प्लस K2SO4। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्चुअली असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन, एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन ओवर है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को पता होगा कि किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे Fe+2, सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2 में, के पोटेशियम +1, मैंगनीज +7, ऑक्सीजन -2, एंड सो फोर्थ। ये आप बहुत इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नाउ लुक ऑन टू इट। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपका रिएक्शन है, यू नीड टू एक्चुअली कन्वर्ट द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म by eliminating the elements or species which are not undergoing either oxidation or reduction। ठीक है, आप पर्टिकुलर रिएक्शन को, जो आपका रिएक्शन है, यहाँ देखिए आप, ये जो रिएक्शन आपको गिवन है, इसको आप आयनिक फॉर्म में क्या कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, और उन्हीं पर्टिकुलर आयंस को लीजिए जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको दिख रहा है, बाकी सबको आप एलिमिनेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसा कि मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल में बताया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशी, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, आइडेंटिफाई क्या करना है, कौन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और कौन रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीशीज ले ली हैं जो ऑक्सीडाइज हो रही हैं एंड रिड्यूस हो रही हैं, बाकी सारे आयनिक स्पीशीज को हमने हटा दिया है। सो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट, ये ऑक्सीडेशन हो गया। Mn+7 से Mn+2 में जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया बाय 5 यूनिट्स, तो ये रिडक्शन हो गया है। नाउ स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग, देखो फोर्थ स्टेप क्या है, you need to find the decrease or increase in the oxidation number, you need to find the NF of the reactant। NF क्या होता है? हाँ सुमिति, बट इट डिपेंड्स कि आपको किस पर्टिकुलर मेथड से चीजों को कैलकुलेट करना है। कभी कभार क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर से आप बैलेंस आउट करो, कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि आयन इलेक्ट्रॉन से करो। ठीक है, सो दैट इज डिपेंडेंट, आपको पता होना चाहिए कैसे बैलेंसिंग करनी चाहिए, लेकिन आपको उनके मेथड्स भी थोड़े से पता होने जरूरी है। अब आप एन फैक्टर को आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं NF ऑफ MnO4 नेगेटिव, देखो +7 से
टू में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। यहाँ पर यार इन लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। तो देखो यहाँ पर +7 से +2, ये +2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ ये होगा +3। सो +7 से +2 में जा रहा है। तो n फैक्टर ऑफ MnO4 नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर आप देखो मैंगनीज जो है +7 से +2 में जा रहा है। सो mod of 2 minus 7, it's the difference of oxidation number of the product minus reactant multiplied by the number of atoms present in the reactant. Yes or no? So it is basically 5. ऐसे ही हम Fe2 पॉजिटिव के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पर देखो, हमारा जो रिएक्टेंट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा +3 है एंड दिस इज +2, ठीक है। सो Fe +2 से +3 में जा रहा है, यस और नो। सो यहाँ देखो मोड ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। सो यहाँ पर एन फैक्टर Fe का क्या आ गया, 1 आ गया। आपने एन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, हाँ जी। अब आपने जो एन फैक्टर कैलकुलेट किया उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स बाय 1 and 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, वो भी ओनली एंड ओनली ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे, देखो एन फैक्टर आपको पता है ना, एन फैक्टर मैंगनीज का कितना आया, +5, एन फैक्टर Fe2 पॉजिटिव का कितना आया, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इनका, सो इट विल बी 5 Fe2 पॉजिटिव एंड 1 MnO4 नेगेटिव। आप देखेंगे आपको ये पता चल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता रही हूँ मैं आप लोगों को, दैट इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर। ये वाली बात समझ में आ गई, आनी ही चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंसिंग द एटम्स, यू नीड टू नाउ बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। फाइन। अब आप यहाँ पर देखो, आपको बैलेंस आउट करने हैं सारे एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 5 Fe2 पॉजिटिव, तो 5 Fe3 पॉजिटिव यहाँ होगा। मैंगनीज देखो यहाँ एक है, यहाँ एक है। अभी हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का काम नहीं कर रहे हैं, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, जैसा कि मैंने बताया था, बाय द एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल ऑन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑक्सीजन थे, तो हमने यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड में हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर है, होना चाहिए, फाइन। अब हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में हमने H2O तो ऐड कर दिए, अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे H पॉजिटिव आयन ऑन द हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। तो आप यहाँ पर देखो, एज सुन एज वी एड y यूनिट्स ऑफ, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, y यूनिट्स ऑफ H2O, वी नीड टू ऐड ट्वाइस 2y H पॉजिटिव आयंस टू द अपोजिट साइड। दैट मीन्स इन अ लेमन लैंग्वेज, अब हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की आपको कमी लग रही है, उतने H पॉजिटिव आयंस आप वहां पर ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड 8 H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर सकते हैं। ओके पीपल, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आप अब यहाँ देखो, चार्ज बैलेंस, दोनों ही तरफ चार्जेस सेम होने चाहिए। चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड की आपको करवा देती हूँ काउंट, इट्स -1, 5 2s are 10, वो भी +10, +8 हो गया। सो इट विल बी इन टोटल +17, इट विल बी इन टोटल कितना, +17 चार्ज हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो, इट इज +2 यहाँ पर, देन इट इज 5 3s are 15 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 15 + 2 = +17। तो आप देखो चार्ज बैलेंस दोनों ही साइड हो चुका है। सो सिंस द चार्जेस ऑन बोथ द साइड इज द सेम, दिस इक्वेशन इज ओवरऑल बैलेंस्ड। लेकिन हमें हमारी मेन इक्वेशन तक पहुंचना है, सो थोड़ी सी मैनिपुलेशन हम यहाँ करेंगे। अब हम आयनिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाय एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द स्पीशीज, जिनको हमने स्टेप 2 में रिमूव कर दिया था। सो कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट दिस एज आवर रिजल्ट। ये हमारा एक काइंड ऑफ क्या आ गया, क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया है ये हमारा। दिस इज द रिजल्ट, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट बेसिकली, ठीक है। क्लियर है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बेसिक मीडियम में वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था। अब हमें यहाँ पर देखो दूसरा एक एग्जाम्पल गिवन है, ClO नेगेटिव, CrO2 नेगेटिव
plus hydroxide ion giving us Cl negative, CrO4 2 negative and H2O. कैसे करेंगे? यहाँ देखो, we need to balance the whole reaction as we have done in the acidic medium, जैसे हमने acidic medium में किया था, जैसे हमने एसिडिक मीडियम में किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको बैलेंस आउट करोगे, रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ को काउंट करके। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ जी। अब आप देखो, हमने उस पर्टिकुलर प्रीवियस इक्वेशन को वैसे ही बैलेंस आउट किया, जैसे आप यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं। देखो, व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, आपका ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ के बारे में ही यहाँ मैं बातचीत करना चाहती हूँ। हमें यहाँ पर, एक मिनट बच्चा पार्टी, ठीक है, हमें यहाँ पर देखो ClO नेगेटिव से क्या मिल रहा है? Cl नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ x माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चा पार्टी ये है कि ClO नेगेटिव के अंदर जो हमारा क्लोरीन है, वो मैं दोबारा लिख देती हूँ, देखो, इट इज x माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन, सो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू प्लस वन। तो यहाँ क्लोरीन जो है ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि नहीं है? प्लस वन से हम माइनस वन की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ हो क्या रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा होगा? इट इज CrO2 नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू गिव अस CrO4 2 नेगेटिव। देखो, x माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस थ्री। यहाँ क्रोमियम जो है ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और यहाँ क्रोमियम x माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस टू, सो x इज इक्वल्स टू प्लस सिक्स हो गया। यहाँ क्रोमियम प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है आपको? हाँ जी, यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो कभी कोई बच्चा ये कहे कि मैम आपने तो पूरा कराया नहीं है, देखो मैंने आपको दो इक्वेशंस बता दी हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बता दिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बता दिया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को लो, एसिडिक मीडियम में जैसे हम बैलेंस आउट करते हैं ना, कैसे? एन फैक्टर निकालो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एटम एटम सेंट्रल एटम को, मेन एटम को बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करो बाय एडिशन ऑफ H2O, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को? यू नीड टू बैलेंस द चार्ज बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने बेसिक मीडियम के बारे में। ठीक है, तो पूरी सारी रिएक्शन को आपको एक तरह से एसिडिक मीडियम की तरह ही बैलेंस करना है। नाउ यू हैव टू एक्चुअली ऐड hydroxide ion, equal number of, add both side the same number of hydroxide ions as there are H positive ions. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट पे H पॉजिटिव आयंस को ऐड किया था। जब बेसिक मीडियम की बारे में बात आती है तो क्या करना है? जितने H पॉजिटिव आयंस आपके पर्टिकुलर रिएक्शन में हैं, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को आप दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को कंबाइन करेंगे ताकि पानी बन जाए। फिर पानी जो बन गया है एक्स्ट्रा वाटर को कैंसिल आउट करेंगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली बीइंग क्लियर। आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो कीजिए, यहाँ रिजल्ट्स मैंने आपको दिए हैं। सो यू हैव टू add to both the sides the same number of hydroxide ion as there are H positive ions। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है क्या? यहाँ पानी बन जाएगा। हाँ जी राखी मैम, पानी बन गया, बन गया। यहाँ हमारे पास ये देखो, ये H2O हमारे पास में है यहाँ पर। हाँ जी मैम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ देखो, अब पहले 2H2O था, पहले क्या था? ट्वाइस ऑफ H2O था। अब यहाँ क्या हो गया? 1H2O हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले H2O ने उसको बैलेंस आउट कर दिया है।
ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो अब आप यहाँ चार्ज बैलेंस भी देखो, चार्ज रिएक्टेंट साइड पे देखो कैसे हम बताएंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। -3 है यहाँ पर, देन वी आर हैविंग प्लस -4, ठीक है ना? देन वी आर हैविंग -2। सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ मैंने एक गड़बड़ कर दी है, इट विल बी -2 ओनली। सो यहाँ क्या आ गया? -3, -2, -7, -7 हो गया यहाँ हमारे पास। ऐसे ही यहाँ देखो -3, -4 दैट इज इक्वल्स टू -7 चार्ज हो गया। ये -4, ये -3 है, ये -2 है यहाँ, ये -2 है एंड दिस इज -3। दोनों ही चार्ज तरफ चार्जेस हमारे -7 हैं, ठीक है? ओके, सो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप? इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन IO3 नेगेटिव, AI नेगेटिव, H पर B, देखो यहाँ पर क्या है आप देखो, A times of I negative, B times of H positive, giving us C times of H2 and D times of I2. A, B, C and D, ये देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए आप। A, B, C and D respectively corresponds to, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? ये क्वेश्चन जो है ना बच्चा पार्टी, ये हमारा एसिडिक मीडियम वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एसिडिक मीडियम वाला। सो एसिडिक मीडियम में यू नीड टू बैलेंस इट आउट। एसिडिक मीडियम में बैलेंस आउट करना है आपको। कैसे करेंगे? अरे कैसे क्या करेंगे यार, आप खुद ब खुद देखो ना यहाँ पर। व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ओवर है, कैसे बैलेंस आउट करेंगे बताओ? एसिडिक मीडियम है, सो हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट आउट? Yes, any idea to anyone over here? Tell me guys. यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप खुद ब खुद देखेंगे यहाँ पर कि हमारा आयोडाइड आयन से हमें क्या मिल रहा है? I2 मिल रहा है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से हम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ प्रस्थान किए हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन गाइस, है ना? रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी होगी राखी मैम? फिर यहाँ देखो IO3 नेगेटिव है हमारे पास। व्हाट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग IO3 नेगेटिव से हमें क्या मिल रहा है? I2 मिल रहा है। ये यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये x - 6 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +5। तो ये देखो, ये +5 से कहाँ जा रहा है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट मीन्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया है यहाँ पर। दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है भाई, समझ में आ गया? अब क्या करना है आपको? अब आप लोगों को बैलेंस करने हैं मेन एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे राखी मैम, क्यों नहीं करेंगे? बोलो, विल यू बी एबल टू डू इट और नॉट? ये मैंने आपको बता दिया, पहली बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इससे पहले भी हमें एक चीज करनी है। बताओ क्या करना है हमें इससे पहले? हमें इससे पहले करना क्या है? जस्ट लेट मी नो। वील बी एक्चुअली, देखो मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ बता दिए हैं। एन फैक्टर कैलकुलेट करके यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। समझ रहे हैं आप? अगर मैं एन फैक्टर कैलकुलेट करूं, ये है 0 माइनस ऑफ -1, 1 आ गया यहाँ पर। इसका एन फैक्टर क्या है? यहाँ पर इसका एन फैक्टर आयोडाइड आयन का क्या है? 1 है। ये +5 से 0 में जा रहा है, 0 -5 इंटू 1, और यहाँ एन फैक्टर क्या हो गया? एक तरह से 5 हो गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो मैम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 5 आयोडाइड आयन आ जाएगा और यहाँ आयोडेट आयन एज इट इज रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। यू नीड टू नाउ बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर 5 आयोडाइड आयन है
हाँ जी, बताइए, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इट अप? कैसे प्रोसीड करेंगे इसको आप? यू नीड टू बैलेंस देम आउट ना। बताओ। हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस आउट करना है। इसमें एज सच इट्स नॉट रिटन कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर से करना है, आप उससे भी कर सकते हैं। और जो प्रोसेस मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को, ये तो हमने एन फैक्टर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, यहाँ हमने एन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया है कि नहीं? या पीपल, है ना? एन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा? नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर है, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है? एन फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के बाद में आप लोगों को क्या करना है? मेन एटम को बैलेंस करना है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस मैम, वी नीड टू डू इट। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ H2O। उसके बाद H पॉजिटिव को, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। फिर चार्ज बैलेंस करना है, एंड देन द आंसर इज इन योर हैंड्स, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को यहीं तक ही छोड़ रही हूँ, इसके आगे की प्रोसीडिंग्स आप करेंगे, एंड यू विल बी एक्चुअली टेलिंग मी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। वेल, एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई है कि यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि आयोडाइड आयन का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इट विल बी 5 ओनली, ठीक है? अब आप देखो ए, बी और डी में से कौन सा आंसर होगा। वेल, लेट मी टेल यू, ए होगा 5, बी होगा 6, ठीक है, सी होगा 3 एंड डी भी होगा 3। तो 5 6 3 3 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। रेस्ट अब आप देखिए आपको कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। बी नहीं होगा, ठीक है सुमिति? एक बार ट्राई करना है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेसिकली। सो बच्चा पार्टी, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। होप यू लव द सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, यस और नो? So this was all from my side. I'll just say thank you so very much. Thank you. ठीक है? And keep learning. ठीक है? Thank you and keep learning, dear ones. Bye-bye with a smiling face. Bye-bye with a smiling face. Bye-bye. Take care and good night. Keep imbibing. We believe in you.